Students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, we have completed chapter number 2 in our last class, and today we will start chapter number 3, and chapter name is Understanding Quadrilaterals. ਅਸੀਂ quadrilaterals ਬਾਰੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ quadrilaterals ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ quadrilateral ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਕੀ ਆ? ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ 4 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, 4 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹ 4 ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਬੰਦ ਫਿਗਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਕਰਵ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿੰਪਲ, ਨੋਟ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨੋਟ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ, ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ। ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿੰਪਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ? ਪੋਲੀਗਨਸ। ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਓਨਲੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਿਗਰ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੋਲੀਗਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕੇਅਰ। ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ? ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ। ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਇਕੁਈ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਕੁਈ ਐਂਗੂਲਰ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਇਰਰੈਗੂਲਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। 3 ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? 4 ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰਸ। ਫਿਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹੈਕਸਾਗਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ 2 ਨਾਨ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇਅਰ ਆ। ਡਾਇਗਨਲ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ABCD ਸਕੇਅਰ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਰਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ? C। ਜੇ ਮੈਂ D ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ A ਅਤੇ C ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ B, ਜੇ ਮੈਂ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ D ਅਤੇ B ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ A, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ABCDE। A ਤੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, B ਅਤੇ E ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ए ते सी कंजक्टिव नूं छड्डता, बाकी बची किहड़ी डी ते ई। ठीक है, इस तरह मैं सी तो शुरू किया, बी ते डी नाल वालियां नूं छड्डता, सी तो ए ऑलरेडी बना चुके हैं, सी तो ई। ठीक है, फिर मैं किता डी तो किदा, फिर मैं सी ते ई नूं छड्डता, बाकी की बचा डी तो बी, डी तो ए ऑलरेडी जुड़ियां हुई। फिर ई तो किता, ए ते डी नूं छड्डता, ई तो बी, ई तो सी। ठीक है, इहदियां डायगनल्स हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 डायगनल्स हो गई इहदियां। क्लीयर है बेटा। नाल वालियां वर्टेक्स नूं छड्ड के बाकी सारियां वर्टेक्स के नाल जिहड़ियां लाइन सैगमेंट्स हुंदियां वा उन्हां नूं असीं बोलदे आ डायगनल्स। ठीक है, नैक्सट कन्वैक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वैक्स पॉलीगन वो हुंदी है जिहदियां डायगनल्स फिगर के अंदर होण, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, ये सारियां कन्वैक्स वा। ते कनकेव किहड़ियां हुंदियां वा जिहदी डायगनल फिगर के बाहर होवे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आ वा फिगर, जदों मैं तो डायगनल बनाई ए तो ए दी बी ते ई ना छड्ड दित्ती, ए दी ई डी दे नाल ते ए दी सी दे नाल। वेखो ए दा कंजक्टिव ई ते बी सी ना, इनू मैं छड्डता, बाकी सी ते डी नूं जॉइन करता। वेखो ये डायगनल फिगर तो बाहर बनन रही है। सो ये किहड़ी हैगी आ कनकेव पॉलीगन। आ किहड़ी हैगी आ कन्वैक्स पॉलीगन। ठीक है, जिहड़ी फिगर तो बाहर बनती होंदी कनकेव, जिहड़ी फिगर के अंदर डायगनल्स बनदियां होंदियां कन्वैक्स। फिर रैगूलर तो इरैगूलर मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, तुसीं हैडिंग पाना, आ डेफिनेशन नोट करनी है। रैगूलर पॉलीगन इज़ बोथ इक्वीएंगुलर एंड इक्वीलेटरल। फॉर एग्जाम्पल आ स्केयर। ठीक है, हैडिंग पाना रैगूलर पॉलीगन। क्लीयर, आ दो फिगर्स बना लियो इहदे नाल। नैक्सट, हाँ जी, क्वाड्रीलेटरल दी एंगल सम प्रॉपर्टी की हुंदी आ। जिवें ट्राईएंगल दी एंगल सम प्रॉपर्टी कीती सी कि ट्राईएंगल दे 3 एंगल्स का सम कितना हुंदा 180। इस तरह तुसीं ये याद रखना वा कि क्वाड्रीलेटरल दे 4 एंगल्स बनते आ। देखो बेटा 1 2 3 4, 4 एंगल्स का जोड़ कितना हुंदा वा 360 डिग्री। ये याद रखना वा, कितना जोड़ हुंदा, कितना सम हुंदा इहदे एंगल्स का 360 डिग्री। ठीक है, सो हुण असीं शुरू करांगे। ये साडा हो गया बेसिक। हुण असीं शुरू करांगे एक्सरसाइज 3.1। गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दित्तियां होईयां। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन्हां दे विचों सिंपल कर्व किहड़ी आ, सिंपल क्लोज्ड किहड़ी आ, पॉलीगन किहड़ी आ, कन्वैक्स पॉलीगन किहड़ी ते कनकेव पॉलीगन किहड़ी। ठीक है, तुसीं फिगर्स इकट्ठियां ही बना लैणियां। क्वेश्चन इस तरह लिखना, सिंपल कर्व इहदा आंसर, बी दा आंसर, सी दा आंसर, डी दा आंसर, ई दा आंसर। ठीक है, जिवें सिंपल कर्व फर्स्ट आ, सैकेंड आ, थर्ड नहीं आ। ठीक है, फोर्थ भी नहीं आ, फिफ्थ आ, सिक्स्थ आ, सैवंथ आ, एट्थ नहीं आ। ठीक है, फिर सिंपल क्लोज्ड, ये ऑलरेडी सारियां ही क्लोज्ड है, सो इसका आंसर भी सेम आ जाना, क्योंकि जिन्नियां सिंपल कर्व्स है सारियां क्लोज्ड आ, सारियां बंद फिगर्स ओपन तो कोई भी नहीं हैगी। सो इट मीनस इसका भी सेम ही आंसर आ जाना। पॉलीगन तुहानूं हुणे दस्सिया की हुंदा वा, जिहड़ा लाइन सैगमेंट्स तो बनिया हुंदा। फर्स्ट सारे लाइन सैगमेंट्स ने इहदे च, सैकेंड फर्स्ट सैकेंड, आ वेखो आ सर्कल आ नहीं। हुण जे आ तुसीं देखोगे इह च लाइन सैगमेंट्स हैगियां, बट सारियां लाइन सैगमेंट्स नहीं, उपर सैमी सर्कल आ। ठीक आ, सो ये जिहड़ियां पॉलीगन्स नहीं हैगियां। नैक्सट कन्वैक्स पॉलीगन किहड़ी हुंदी आ, जिहदियां अंदर बनदियां डायगनल्स, वो किहड़ी आ, आ वाली सैकेंड। कनकेव जिहदियां बाहर बनदियां मैं ऑलरेडी समझा चुकी हाँ, वाली एग्जाम्पल तुहानूं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नैक्सट
सैकेंड क्वेश्चन हैगा हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ਜਿਹੜੀਆਂ क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ डायगनल्स आ। कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल मैं हुणे तुहानूं एग्जाम्पल समझाई। कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल कन्वैक्स किहड़ी हुंदी जिहदियां डायगनल्स अंदर बनदियां। ठीक आ, मैं स्केयर की एग्जाम्पल लै लैनी। किन्नियां डायगनल्स हुंदियां इहदियां 2 डायगनल्स हुंदियां। जिवें रैगूलर हैक्सागन की गल करदी, हैक्सागन की हुंदा जिहदियां 6 साइड्स आ, किन्नियां डायगनल्स होणगियां वेखो। मैं पहलां समझा देवां तुहानूं। आ देखो मैं एक हैक्सागन बना ली, इहदियां डायगनल्स वेखो। एफ ते बी नूं छड्ड देना, ई दे नाल जुड़ी, डी नाल जुड़ी, सी नाल जुड़ी, 3 हो गईयां। उस तो बाद मैं बी तो शुरू करदी हाँ, ए नूं ते सी नूं छड्ड दो, बी एफ नाल जुड़ी, बी ई नाल जुड़ी, बी डी नाल जुड़ी, 3 होर हो गईयां। उस तो बाद मैं सी तो शुरू करदी हाँ, सी नूं बी नाल ते डी नाल छड्ड देना, बाकियां ना जोड़ो। सी तो ए ऑलरेडी बन चुकी है, सी तो एफ ते सी तो ई, 2 ए आ गई। उस तो अगे डी, सी तो ई नूं छड्ड दो, डी तो बी ऑलरेडी बन चुकी, डी तो ए ऑलरेडी बन चुकी, डी तो एफ रह गई, एक ए बन गई। उस तो अगे आ गया ई, डी ते एफ नूं छड्ड दो, ई सी दे नाल ऑलरेडी बना चुकी, बी नाल भी बना चुकी, ए नाल भी बना चुकी। ठीक है, फिर एफ ते आ गए, ए ते ई नूं छड्ड दो, एफ ने बी नाल भी बना दित्ती है, सी नाल भी बना दित्ती है, ते डी नाल भी बना दित्ती है। ठीक है, सो टोटल कितनियां हो गईयां ये 3 3 6 6 ते 2 8 8 ते 1 9। ठीक है, सो रैगूलर हैक्सागन मतलब जिहदियां सारियां साइड्स रैगूलर का मतलब जिहदियां सारियां साइड्स बराबर आ, कितनियां डायगनल्स होदियां, इहदा आंसर आ जाना 9। ठीक है, ए ट्राईएंगल, ट्राईएंगल दी कितनियां डायगनल्स होणगियां। जे मैं ए तो बनाउणा चाहां, कंजक्टिव साइड छड्ड दो, बी नूं ते सी नूं छड्ड दो, बाकी तो कुछ बचिया ही नहीं। फिर मैं बी तो बनाना चाहां, कंजक्टिव वर्टेक्स छड्डतियां, बाकी कुछ नहीं बचिया। ਇਹਦਾ मतलब ट्राईएंगल ਦੀ 0, कोई डायगनल नहीं ਹੁੰਦੀ। बेटा ये मल्टीपल चॉइस वास्ते तो शॉर्ट क्वेश्चन वास्ते इन्हां दे विचों काफ़ी क्वेश्चन आउंदे हुंदे आ। ठीक है, कोई भी इहदी डायगनल नहीं हैगी। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द सम ऑफ मैजर ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल दे किन्ना सम हुंदा वा 360। ਇਹਦਾ आंसर आ जाना 360 डिग्री। 360 डिग्री कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल दा विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रीलेटरल इज़ नॉट कन्वैक्स। यस, ਇਹਦਾ नाल आंसर आ जाना यस। अगर कन्वैक्स नहीं है तो भी ਇਹਦਾ सम 360 डिग्री है, क्वाड्रीलेटरल का सम 360 डिग्री ही होना। ठीक है, सो ਇਹਦਾ आंसर आ जाना 360 डिग्री एंड यस। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल दिता होया, ईच फिगर इज़ डिवाइडेड इंटू ट्राईएंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट। हरेक फिगर नूं ट्राईएंगल्स की फॉर्म दे विच डिवाइड किया होया। ठीक है, वेखो पहला किन्ना सी 3 साइड्स किन्नियां 3, एंगल सम किन्ना 180। सानू पता ना ट्राईएंगल दे एंगल्स का सम किन्ना हुंदा 180 डिग्री। सैकेंड क्वाड्रीलेटरल सी, 4 साइड्स वाली फिगर, मैं 2 ट्राईएंगल्स बनातियां, तो एक ट्राईएंगल का किन्ना हुंदा 180 तो 2 का किन्ना होएगा 2 × 180 यानी कि 360। असीं 360 पढ़िया ना। 2 नूं मैं किद्दां लिख सकदी कि 4 साइड्स सी 4 - 2। फिर नैक्सट 5 साइड्स वाली फिगर लई, जो 5 साइड्स वाली फिगर बनाई किन्नियां ट्राईएंगल्स बनियां 1 1 2 3, 3 ट्राईएंगल्स बनियां, किन्ना आ जाना 3 × 180। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला की डिड्यूस किया कि 5 साइड से विचों 2 माइनस किया, फिर 6 साइड से विचों 2 माइनस किया, मल्टीप्लाई 180। फार्मूला की बन रहा साडे कोल कि जिन्नियां उस शेप दीयां साइड्स वा 2 आते अगर 3 आ 4 आ 5 आ 6 वा, मैं n ले लिया, n की जगह तो कुछ भी हो सकता, वो 2 माइनस कर दिए तो 180 मल्टीप्लाई कर दिए, वो साडा उस फिगर के सारे एंगल्स का सम आएगा। वो साडा उस फिगर के सारे एंगल्स का सम आएगा। तुसी जो क्वेश्चन लिखना ना, स्टेटमेंट लिखनी तो टेबल बना लेना नाल। उस तो अगे तुसी
आ स्टेटमेंट लिखनी, वट कैन यू से अबाउट दिस एंगल सम ऑफ। अच्छा, इस तो पहला ना जो तुसी आ क्वेश्चन लिखना, फिर टेबल बनाना, ये थल्ले एक आंसर लिखना, ठीक है। वो की आंसर लिखना, इत्थे लिख दिनी मैं, आंसर लिखना वी डिड्यूस n माइनस, मैं कॉपी ते लिख दी बेटा, एक मिनट, we deduce that sum of angles of n-sided polygon equals to n minus 2 multiply 180 डिग्री। की डिड्यूस किया सी कि अगर किसी फिगर दे n साइड्स वा, दैन साइड्स चों 2 माइनस करके 180 नाल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उस तो अगे तुसी लिखना वट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वैक्स पॉलीगन नंबर 7, ठीक है। अगर किसी फिगर दियाँ 7 साइड्स वा, उसका आंसर क्या आ जाना, ए पार्ट का आंसर एंगल सम ऑफ 7 साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 7 चो 2 गए, 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 900 डिग्री, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आ जाना, 980 डिग्री, 900 डिग्री। इस तरह बी तो सी आ जाना, सी बी है 8, एन की जगह पर 8 पुट कर देना, सी है 10, एन की जगह पर 10 पुट कर देना, ठीक है। बी एंड सी तुसी करने। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5th, वट इज़ रैगूलर पॉलीगन। रैगूलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैं तुहानूं लिखवाई हुई आ। रैगूलर पॉलीगन इज़ बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, पेज नंबर 39 के उपर, 39 के उपर, ठीक है, 39 नंबर पेज। स्टेट द नेम ऑफ रैगूलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। उन्होंने क्या वा 3 साइड्स वाली रैगूलर पॉलीगन का की नाम आ, 3 साइड्स वाली उसका नाम आ इक्विलेटरल ट्राइएंगल। नैक्सट 4 साइड्स वाली का नाम आ स्क्वेयर। नैक्सट 6 साइड्स वाली का नाम आ रैगूलर हैक्सागन। क्लीयर है, ये हो गया साडा 5th क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन दे विच असीं एक्स की वैल्यू लभनी है। फस्ट क्वेश्चन है वा आ फिगर दिती हुई है, सानू 3 एंगल्स दिते हुए आ, तो चौथा है एक्स। असी एक्स लभना, सानू पता सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन्हों प्लस कर लिया 130 तो 50 180, 180 तो 120 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 300 ने उधरों जाके माइनस हो जाना, एक्स कितना आ गया 60 डिग्री। दैट्स इट, ये हो गया साडा फस्ट पार्ट, ए पार्ट। सैकेंड बेटा वेखो फिगर दी हुई आ, असी एक्स लभना, बट यदा आ वाला एंगल भी नहीं दिता है सानू, ठीक है। इदा फिगर दी हुई है सानू, मैं इनू लै लेनी ए, मैं लभना कि एक्स, ए लै लेनी मैं। वेखो ए तो आ का साइन होंदा 90 डिग्री का, ए तो 90, ये दोवें लीनियर पेयर बना रहे इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। बेटा ए मैंशन जरूर करना क्वेश्चन दे विच,
अगर तुसी मैंशन नहीं करते नंबर नहीं मिलने। 90 ने उधर जाके माइनस हो जाना। ए कितना आ गया 90 डिग्री। इट मीनस ए कितना आ गया मेरे को 90 डिग्री। हुण मेरे को 4 एंगल्स 70 60 90 तो एक कितना एक्स। इत्थों मैं इस तरह की फिगर होगी पहले वर्गी, फिर एक्स का निकल आना। फिर इत्थे फार्मूला लिख लेना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। इनू सॉल्व करके इत्थों एक्स की वैल्यू निकलनी। ठीक है, तुसी करनी कैलकुलेशन सॉल्व तुसी करनी। क्लीयर है। नैक्सट सी पार्ट। सी पार्ट की फिगर इदा दिती हुई आ। असी एक्स लभना, देखो ठीक है। आ सानू मैजरमेंट्स दित्तियां हुई इहदियां। पहली गल तो वेखो फिगर्स एक्स लभना दी कितनियां साइड्स आ 1 2 3 4 5। इट मीनस ये क्वाड्रीलेटरल नहीं है, ये की आ पेंटागन आ। ठीक है, ये पेंटागन आ दोवें एंगल लीनियर पेयर बना रहे ए तो 70, इस तरह बी तो 60 लीनियर पेयर बना रहे। बेटा मैंशन जरूर करने एंगल्स। मैं लिखना 70 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 70 उधर जाके माइनस हो जाना, ए कितना आ जाना 110 डिग्री। इसी तरह 60 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। 60 माइनस हो जाना उधर जाके, बी कितना आ जाना 120 डिग्री। मतलब ए आ गया मेरे को 110 डिग्री, बी कितना आ गया मेरे को 120 डिग्री। हुण मैं एक्स लभना, किन्ने एंगल्स 5 एंगल्स का सम 540 हुंदा। बेटा याद रख लेना, ये याद रख लेना वा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक है, सो की लिखूँगी मैं 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्री। 30 तो 110 140 140 तो 120 260 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। हुण कि 260 ने माइनस हो जाना उधर जाके, इधर की बचिया, इधर बचिया 2x। 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 280 डिग्री। 280 डिग्री नू 2 नाल डिवाइड किया, x कितना आ गया 140 डिग्री। अगों कैलकुलेशन ही की है बेटा मैं। ठीक है, कितना आ गया x 140 डिग्री। क्लीयर है बच्चों। हुण इस तरह डी पार्ट आ, डी पार्ट दी कितनियां साइड्स आ 1 2 3 4 5 सारे ही एक्स आ ते 5 साइड्स मतलब पेंटागन, ते पेंटागन का सम कितना हुंदा 540 डिग्री। ठीक है, सो इत्थे सेम लाइन लिखनी है तुसी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक है, ये आ जाना एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 540 डिग्री। कितना आ जाना 2 3 4 5 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। 540 ने 5 के नाल डिवाइड हो जाना, इसका आंसर तुसी कट लेना डिवाइड करके। क्लीयर है बच्चों। सो 7th ते 8th सम जिहड़ा वा वो तुहाडा होमवर्क हैगा। 7th दे 2 पार्ट्स आ, मतलब जिवें चलो मैं एक पार्ट करवा दिन्नी बेटा, मैं समझा दिन्नी आ तुहानूं। ठीक है, करना तुसीं आ
उन्होंने क्या फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जैड, एक्स लभना, वाई लभना ते जैड लभना, तिन्ने लभ के इन्हों प्लस करना, प्लस का साइन है विच एक्स प्लस वाई प्लस जैड। देखो फिगर दिती हुई सानू, इत्थे वाई है, ये 90 डिग्री है। मैं ए पार्ट करवा दिनी बेटा, बी तुसी करना, ठीक है। 30 डिग्री है, आ जैड। सब तो पहला एक्स ते 90 की बना रहे, लीनियर पेयर। (180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एक्स कितना आ गया 90 डिग्री। फिर Z ते 30 भी लीनियर पेयर बना रहे, ये भी लीनियर पेयर है। 30 ने माइनस हो जाना उधर जाके, कितना आ गया Z 150 डिग्री। हुण Y किद्दां लभू, Y इत्थे तो कोई एंगल ही नहीं है, जे हुंदा सानू Y लभ जाना सी ते असीं एक्स वाई जैड नूं जोड़ देना सी, बट इत्थे तो नहीं है। सो पहला एंगल सम प्रॉपर्टी लाउणी पैनी ट्राइंगल के उपर, फिर असीं आ एंगल लभना ए, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 90 प्लस 30 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैनू सॉल्व कर लिया, ए मेरे कोल कितना आ गया, ए मेरे कोल आ गया 60 डिग्री, 60 आ गया। हुण मैं वाई कढ़ सकती हाँ, वाई तो 60 लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये आ जाना वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 60 उधर जाके माइनस हो जाना, वाई कितना आ जाना 120 डिग्री। हुण मेरे कोल वाई भी है 120, एक्स है 90 तो जैड है 150। मैनू तिन्हां दा प्लस चाहिए वा, सो मैं लिख देना एक्स प्लस वाई प्लस जैड इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री। इन्हों प्लस करो, कितना आऊगा 360 डिग्री, कितना आ जाना है 360 डिग्री। सो ये साडा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सैकेंड पार्ट भी इस तरीके नाल होना बेटा, लीनियर पेयर लीनियर पेयर लीनियर पेयर, बट इत्थे ए कढ़ना पैना, तो ए इत्थे एंगल सम प्रॉपर्टी लाई सी, इत्थे लाउणी सी क्वाड्रीलेटरल दी, कि 4 एंगल्स का जोड़ 360 हुंदा, ए निकल आऊगा, फिर उहदा लीनियर पेयर ला देना, फिर उस तो बाद एक्स प्लस वाई प्लस जैड प्लस डबल्यू कर देना, ठीक है। सो ये तो असी ये चीज़ ऑबजर्व करते हाँ, असी ये चीज़ ऑबजर्व करते हाँ कि किसी भी फिगर के जोड़े बाहर वाले एंगल्स होंदे आ ना, उन्हां दा सम कितना आया मेरे को 360 डिग्री, ठीक है। असी की ऑबजर्व किया कि किसी भी फिगर के एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होंदा 360 डिग्री। सो जो तुसी एक्सरसाइज फिनिश करनी ना ये वाली, उहदे नीचे एक डेफिनेशन लिख लियो, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। ये असी इत्थों ऑबजर्व की चीज़ कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना वा 360 डिग्री। क्लीयर, जिमें हुण आ क्वेश्चन है ना, वेखो एक्सटर्नल एंगल्स एक्स लभना 125 125 तो एक्स, तो सानू पता कि तिन्नां दा जोड़ कितना, बाहर वाले 3 एंगल्स का जोड़ कितना 360, असी एक्स आराम नाल लभ सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं तुहानू तां क्वेश्चन दस रही हाँ कि ये पिछली एक्सरसाइज के नाल क्वेश्चन लिंक्ड हैगा वा, इदा फिगर दी हुई आ, है ना। तो सानू पता वा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज़ 360 डिग्री, फिर 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री,
250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स उपर इन्हें डिग्री पाया होया बेटा क्वेश्चन दे विच। एक्स कितना आ जाना 110 डिग्री। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जिहड़ा 3.2 का फस्ट क्वेश्चन सी ना उहदे नाल लिंक्ड सीगा, मैं इस करके तुहानूं ये सेंड कीता वा। ठीक है, बी पार्ट की भी मैं नाल तुहानूं पिक भेज दिंदी हाँ। सो अज असी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की है तो 3.2 का फस्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर तुहाडी कोई भी डाउट आ, कोई भी क्वेरी है दैन तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।